Hello friends, as you know, practice makes man perfect. Friends, a person want to be perfect, he has to practice. Practice means the thing, the task you have to do so many times. If you are interested to speak English or to learn English, same thing you have to follow on those YouTube channel. Friends, whenever you watch the video till end, because if you don't watch the video till end, you won't understand the topic or concept. Unless you don't understand the topic or concept, you won't be able to speak very good English. So friends, here I would like to make you request, if still you haven't subscribed my YouTube channel, subscribe it. When you watch the video, if you like the video, then like the video. If you have any question regarding the video or regarding the grammar or any sentence, if any sentence is going on in your mind, you can put the sentence in a comment box. We will reply you as soon as possible. Friends, while learning the English, you have to keep in mind few things. Whatever you learn on this YouTube channel or on the video, please try to speak and repeat. If you still face any problem regarding any kind of English sentences, grammar, you can, without hesitating, you can put a comment in a comment box. We will reply you as and when we get time to reply you. So friends, keep learning, keep growing. Thank you for subscribing my channel if you have already subscribed. So friends, try to share my videos with those friends who are really interested to speak and learn English. Because friends, as you know, in present era, the English is an essential part of a human qualification. Even for a professional growth, educational growth, for business growth, the English is the major part to grow you in your life. If you want to succeed in your life, you need English. If you want to live a professional life, you need English, friends. Without English, the life is not so easy as you may be thinking. So friends, you must be able to speak English. Doesn't matter you are much perfect in English, but you must be able to speak or must be able to communicate with the person in a ordinary way, in a simplest way. You must be able to understand English, what the people are speaking. This much knowledge of English is sufficient to survive in this world. If you want to be efficient or proficient speaker of English, you have to be continue with my YouTube channel Hindi English. I make you sure if you will be regular watching my videos, one day you will be able to speak very. So friends, in today's video lesson, we are going to discuss a very interesting topic of grammar. Friends, today's topic is very used in spoken and written. So friends, learn this topic very carefully till end, watch the video. If you like this video, then subscribe my channel and press the bell icon to get the updates. So friends, in today's video lesson, we will talk about a very interesting tense that is called present perfect. Present perfect tense. In today's video, we are going to discuss about present perfect tense. आज के इस वीडियो लेसन में दोस्तों आप बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स हमने लास्ट वीडियो में आपने सीखा इज एम आर, जिसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। उससे पहले आपने डू डज सीखा, जिसे हम प्रेजेंट सिंपल कहते हैं। उसके बाद आपने डिड सीखा, यूज पास्ट में होता है। ये तीनों वीडियोस अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर उनको देखिए। क्योंकि फ्रेंड्स, जब तक इंग्लिश को आप स्टेप बाय स्टेप नहीं सीखेंगे तब तक चीजें आप मिस करते रहेंगे और बाद में आप कंफ्यूज होंगे कि मैं कहां से बोलूं, किस तरह से बोलूं, कैसे बोलूं। तो ये कंफ्यूजन फ्रेंड्स आपके साथ हमेशा के लिए रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप हर वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिए, एक एक करके सभी वीडियोस को आप देखिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज टेल अस इन कमेंट बॉक्स, वी विल सॉल्व दैट प्रॉब्लम फ्रेंड्स। बट बी रेगुलर विद अस। अगर आप रेगुलर रहेंगे, वीडियोस को रोज देखेंगे, आपके पास वीडियो रोज नहीं पहुंच पा रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। उसको सब्सक्राइब करना होता है, बेल आइकन को प्रेस करना होता है अगर आप वीडियोस को रोज पाना चाहते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती तो आप उसे डिसलाइक करें। कमेंट बॉक्स में हमें बेझिझक, विदाउट एनी हेजिटेशन, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो लेसन में फ्रेंड्स आप बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस स्पोकन में बहुत यूज होता है, बहुत सारे सेंटेंसेस आप डे टू डे लाइफ में यूज भी करते हैं।
उससे पहले फ्रेंड्स हमें जानना होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कि कोई भी काम आपने कर लिया, कोई भी काम कर लिया, काम कर लिया, मैंने खा लिया, मैंने नहा लिया, मैंने ब्रश कर लिया, मैंने फोन कर दिया, शर्मा जी से बात कर ली, वर्मा जी को बता दिया, पैसे जमा कर दिए, फोन कर दिया, फोन खरीद दिया, उसको पीट दिया, उससे सुन लिया, उसको गाली दे दी। मतलब बहुत सारे काम जो आपने कर लिए या फिर आपको भी काम कर चुके हैं, आपको भी काम कर चुके हैं, आपने कोई काम कर, मैं खा चुका हूं, मैं नहा चुका हूं, मैं सो चुका हूं, मैं उठ चुका हूं, कोई भी काम आप कर चुके हैं, मैं खरीद चुका हूं, मैं बेच चुका हूं। इस तरह के सेंटेंसेस फ्रेंड जो होते हैं उसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन फ्रेंड्स हमें हर एक सेंटेंस का सेंस समझना होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किस तरह के सेंस के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। बिकॉज स्पोकन में हर एक लैंग्वेज का सेंटेंस सेंस पे डिपेंड करता है कि आप अपना सेंस किस तरह से यूज करते हैं। आप सेंटेंसेस को हाउ जस्ट यू जस्टिफाई मॉडिफाई द सेंटेंसेस इन इंग्लिश, बिकॉज यू डोंट ट्रेन, आपको उसे रटना नहीं है, आप उस सेंटेंसेस को रट के कि जिस सेंटेंस के आखिर में लिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट है, चुका है तो प्रेजेंट परफेक्ट है। कई बार सेंटेंसेस का सेंस कुछ डिफरेंट होता है लेकिन फिर भी वो सेंटेंस किसका होता है, प्रेजेंट परफेक्ट फॉर द स्टूडेंट्स। तो इसलिए आप इसको ढंग से समझिए ताकि while speaking don't create or don't make any kind of error while speaking। जब आप बोले तो आपसे कोई गलती ना हो। तो फ्रेंड्स कोई भी काम कर लिया है, कोई भी काम कर चुके हैं, या फिर हम कहेंगे कोई भी काम आपने कर दिया है, आपने कोई काम कर दिया, जैसे मैंने फॉर्म जमा कर दिया है, मैंने फॉर्म भर दिया है, मैंने एडमिशन ले लिया है, मैंने उसे भेज दिया है, मैंने उसे रिसीव कर लिया है। इस तरह के जो सेंटेंसेस स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। आप शायद समझ रहे हैं कि कोई भी काम कर लिया, कोई भी काम कर चुके हैं, कोई भी काम कर दिया है। फ्रेंड्स वो फिर किसी भी सब्जेक्ट के लिए हो सकता है। मैंने कोई काम कर दिया है, वह चला गया है, वह आ गया है, उसने मुझे दे दिया है, उसने ले लिया है, उसने खा लिया है, उसने जहर खा लिया है, वो मर गया है। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, बोलते हैं। सेंस सेंटेंस का वो होता है कि वो सेंटेंसेस होते हैं फ्रेंड्स किसके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें समझना है कि परफेक्ट क्या होता है। लेट मी टेल यू व्हाट इज परफेक्ट। परफेक्ट एक लेटिन वर्ड है फ्रेंड्स, लेटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है। लेटिन लैंग्वेज में परफेक्ट का मतलब होता है जब हम बात करते हैं कि कोई भी काम सक्सेसफुली फिनिश या कंप्लीट हो गया है, उसको हम बोलते हैं परफेक्ट। प्रेजेंट में कोई भी काम जस्ट अभी खत्म हुआ है तो इसलिए उसे कह दिया क्या, प्रेजेंट परफेक्ट। वी हैव टू अंडरस्टैंड द इंग्लिश कंसेप्ट विद अ साइकोलॉजिकल वे। If you want to speak very good English, take it not much serious। आप इंग्लिश को जितना फ्रैंक होके, स्मूथ होके, होमली होकर सीखेंगे उतना आप जल्दी सीखेंगे। फ्रेंड्स whatever concept you are learning in this video or this channel, try to follow the same, try to adopt the way, try to copy that sentence and try to speak in a different way। उस सेंटेंस को आप अलग अलग तरीके से किस तरह से बोल सकते हैं उसको बोल के देखिए, उसकी प्रैक्टिस करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो परफेक्ट का लेकिन वर्ड है, कोई भी काम सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया, फिनिश हो गया, तो फ्रेंड्स वहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बहुत सारे सेंटेंसेस बोल के बताया कि मैंने कोई काम कर लिया है, मैंने पानी पी लिया है, मैंने खाना बना लिया है, मैंने खाना खा लिया है, मैंने बर्तन साफ कर लिए, मैंने पढ़ाई कर ली है, मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया है, मैंने बुक्स खरीद ली है, उसने बुक्स फाड़ दी है, उसने लिख लिया है, उसने बुक्स को खराब कर दिया है, उसने गिरा दिया है, उसने पेंट कर दिया, उसने दीवार को खराब कर दिया है। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस आप बोलते हैं जो सभी सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, सेंटेंसेस को बनाने से पहले हम इसके रूल को समझते हैं कि इसका रूल क्या होता है और किस तरह से सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है सेंटेंसेस को बनाने की दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। रूल में फ्रेंड्स इसमें हैज और हैव दो वर्ड यूज होते हैं, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी ऐड होती है। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे होते हैं तो आपके पास दो वर्ड यूज करने के लिए होते हैं, हैव और हैज, और उसके साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी होती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। आपने पास्ट सीखा था, पास्ट में आपने सेकंड फॉर्म यूज की थी, और आप प्रेजेंट परफेक्ट सीख रहे हैं तो इसमें आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और सेंटेंसेस बनाएंगे। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, जब आपके पास सब्जेक्ट आई हो, यू हो, या फिर वी, या फिर दे, आप इन लोगों की जब बात कर रहे हो, इनके बारे में आप बता रहे हो कि इन्होंने कोई काम कर लिया है, आपने कोई काम कर लिया है,
यो ने कोई काम कर लिया है, वी हम लोगों ने कोई काम कर लिया है, दे बहुत सारे लोग हैं, आप उनके बारे में बताओ उन्होंने कोई काम कर लिया है। तो फ्रेंड्स इनके लिए आप यूज करेंगे हैव, यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस यूज करेंगे आप ऑब्जेक्ट। इस तरह से आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे, आप उनके बारे में बताएंगे कि उन्होंने कोई काम कर लिया है। कुछ सेंटेंसेस के लिए देखते हैं फ्रेंड, जैसे कि मैंने नहा लिया है, आप यूज करेंगे आई हैव टेकन बाथ। टेक बाथ नहाना होता है, टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन, ये थर्ड फॉर्म है फ्रेंड्स। आई हैव टेकन बाथ, मैंने नहा लिया। मैंने नाश्ता कर लिया है, आप यूज करेंगे आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट, आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट नहीं ब्रेकफास्ट, फर्स्ट ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट। तो काम हो चुका है, मतलब मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है। यू हैव टेकन टी, आपने चाय पी ली है। मैं बता रहा हूं कि आपने चाय पी ली, यू हैव टेकन टी, दोबारा फिर पीने आ गए, यू हैव टेकन टी, आपने चाय पी ली, यू हैव टेकन टी। इसी तरह से फ्रेंड्स वी हैव सीन, हमने कोई चीज देख ली। आप हमें कोई चीज दिखा रहे हैं लेकिन हमने तो देख ली, पहले ही देख ली हमने तो। वी हैव सीन, दे हैव गॉन, ओ आप उनसे मिलने के लिए अब आए, वो तो गए, दे हैव गॉन। इस तरह से फ्रेंड्स इन सभी सेंटेंसेस में काम खत्म हो चुका है, काम हो गया है, काम कर लिया गया है, कोई भी काम कोई भी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए आई यू वी दे इनके आपने बात की। उसके बाद फ्रेंड्स आप बात करेंगे ही सी इट या नेम, आप इनके बारे में ध्यान रखिए फ्रेंड्स, जब हम बात करेंगे ही सी इट और नेम की, तो इसके साथ आप यूज करेंगे हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे आप ऑब्जेक्ट। थर्ड पर्सन की बात है, आप ही के बारे में बता रहे हैं कि उसने कोई काम कर लिया है। फीमेल कैंडिडेट है, उसने कोई काम कर लिया। इट आप किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, आप किसी व्यक्ति का नेम लगाकर बात कर रहे हैं कि उन्होंने कोई काम कर लिया है। इसके लिए फ्रेंड जैसे कि वह गया, तो आप यूज करेंगे ही हैज गॉन, वह गया, ही हैज गॉन। आप यूज करेंगे ही हैज टेकन लंच, उसने लंच कर लिया, मतलब कि लंच करने का काम खत्म हो गया। वह he has gone ऑफिस, वह ऑफिस गया, मतलब कि कोई व्यक्ति मिलने आया, मेरे से पूछा कि where is your brother, आपका भैया कहाँ है, मैंने कहा he has gone ऑफिस, वह तो ऑफिस गया, काम खत्म। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप, इसी तरह से फ्रेंड्स आप सी के लिए she has joined, उसने ज्वाइन कर लिया, किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहा हूं कि उसने ज्वाइन कर लिया। इट हैज स्पॉइल्ड, स्पॉइल का मतलब फ्रेंड्स खराब होना होता है, स्पॉइल मतलब खराब, कोई चीज खराब हो गई है, 2 दिन पहले सही थी लेकिन आज चल नहीं रही है क्योंकि खराब हो गई है, काम खत्म हो गया कोई काम। इट हैज स्पॉइल्ड, मोबाइल हैज स्पॉइल्ड, कंप्यूटर हैज स्पॉइल्ड, फैन हैज स्पॉइल्ड, आप कहीं यूज कर सकते हैं। इट हैज फिनिश्ड, कोई चीज खत्म हो गई है, इट हैज फिनिश्ड, आप यूज कर सकते हैं। बहुत सारे सेंटेंसेस आप ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, नेम मोहन हैज गॉन, मोहन गया, सोन हैज जॉइंड, सोन ने ज्वाइन कर लिया, राकेश हैज वॉन द मैच, राकेश ने मैच जीत लिया, इंडिया हैज वॉन द मैच, इंडिया ने मैच जीत लिया है। इस तरह से फ्रेंड्स आप किसी नेम की बात कर सकते हैं। बस हैज गॉन, बस गई, ट्रेन हैज कम, ट्रेन आ गई, ट्रेन हैज स्टार्टेड, ट्रेन शुरू हो गई। इस तरह से फ्रेंड्स आप सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं ही सी के साथ। लेकिन फ्रेंड्स हमने यहां पर जो सेंटेंसेस की बात की, इन सेंटेंसेस में आप बता रहे हैं कि किसी ने कोई काम कर लिया है, इन सेंटेंसेस में भी आप बता रहे हैं कि किसी सब्जेक्ट ने कोई काम कर लिया है, काम खत्म हो गया है। लेकिन फ्रेंड्स कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमें क्वेश्चन करना होता है, पूछना होता है सामने वाले से। फ्रेंड्स जब सामने वाले से पूछेंगे तो आप किस तरह से पूछेंगे, चलिए बात करते हैं। आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस की जब बात करेंगे फ्रेंड्स, तो आपको हैव
फर्स्ट लगाना है। हैव से आप क्वेश्चन कर सकते हैं यू, वी, दे या फिर आर। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। हैव, यू, वी, दे और आई, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। आप किससे क्वेश्चन कर रहे हैं? यू से पूछ रहे हैं, वी के बारे में पूछ रहे हैं, दे के बारे में पूछ रहे हैं या फिर आई के बारे में पूछ रहे हैं। ये डिपेंड करता है आपके सेंटेंस पर कि आपने किस तरह का सेंटेंस बनाया है। जैसा आपका सेंटेंस होगा वैसा आपका सेंटेंस होगा। सेंटेंस पे डिपेंड करता है। अगर फ्रेंड्स आप हैज की बात करें तो हैज में आप ही, सी, इट या फिर नीड, उसके बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे प्लस आप यूज करेंगे ऑब्जेक्ट। ये फ्रेंड्स अफर्मेटिव सेंटेंस है जब आप क्वेश्चन कर रहे हो ही के बारे में, सी के बारे में, इट के बारे में या फिर नेम के बारे में। आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे अभी हमको सेंटेंसेस एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे क्या आपने चाय पी? हैव यू टेकन टी? हैव यू टेकन, थर्ड फॉर्म, हैव सब्जेक्ट टेकन, हैव यू टेकन टी? क्या उसने नहा लिया? हैज ही टेकन बाथ? क्या उसने नहा लिया? हैज ही टेकन बाथ? क्या वे गए? वे, दे, हैव दे गॉन? हैव दे गॉन? क्या उन्होंने ज्वाइन कर लिया? हैव दे ज्वाइंट? क्या आपने कपड़े धो लिए? हैव यू वॉश्ड क्लोथ? क्या आपने पेंट कर लिया? घर पेंट कर लिया मतलब पूछना है। हैव यू पेंटेड होम? हैव यू पेंटेड होम? इस तरह के आप सेंटेंसेस बना सकते हैं फ्रेंड्स। ये सभी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करें, हो गया काम, यस आई हैव। जैसे कि मैंने इंग्लिश बोली है, काम खत्म किया, इंग्लिश बोली है। आई हैव स्पोकन इंग्लिश। मैंने एग्जाम दे दिया। आई हैव फेस्ड एग्जाम। मैंने फोन खरीद लिया। आई हैव बॉट। आई हैव बॉट फोन। मैंने फोन खरीद लिया। मैंने फोन बेच दिया। आई हैव सोल्ड फोन। इस तरह के सेंटेंसेस आप अफर्मेटिव बनाते हैं। अगर हम बात करें थर्ड पर्सन की, ही हैज वॉन द मैच। He has won match. उसने मैच जीत लिया। He has won match. थर्ड पर्सन की बात कर रहा हूं। They have gone. वो तो चले गए। They have gone. Bus has gone. बस गई। इस तरह के सेंटेंसेस। अगर फ्रेंड्स आपको नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करनी है, समटाइम्स आपको नेगेटिव सेंटेंसेस भी बनाने होंगे। कभी कभी आपको खुद ही काम के बारे में बताना होगा, खुद ही काम अभी खत्म नहीं हुआ है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप यूज करेंगे हैज नॉट, हैव नॉट, इस तरह। अब इस तरह से सब्जेक्ट आपको बताया मैंने, आई, यू, वी या फिर दे, हैव नॉट, ही, सी, इट, have not, has not, sorry, आप has not यूज करेंगे। I, you, we, they के साथ आप have not यूज करेंगे और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। फ्रेंड्स हैज और हैव प्रेजेंट परफेक्ट में बहुत सारे सेंटेंसेस आप बोलते हैं और आप फील करके बोलते हैं कि कोई भी काम आपने कर लिया आप बोलेंगे, कोई भी काम नहीं किया तो भी आप बोलेंगे। हम सामने वाले से पूछेंगे कि आपने ये काम कर लिया तो भी आपको बोलना होगा। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको हैज हैव से आप सेंटेंसेस बनाएंगे। वीडियो के एंड में आपको बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे, जिन वर्ड्स की हेल्प से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। हमने फर्स्ट सीखा
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जिसमें आपने यूज किया हैज हैव। अब आप हैज हैव का दूसरा यूज सीखेंगे, सेकंड यूज हैज हैव का स्पोकन में कहां यूज करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हैज हैव का दूसरा यूज, हैज हैव। फ्रेंड्स हैज हैव का यूज आप जब करेंगे जब आपके पास कोई चीज है जिस पे आपका अधिकार है, आपका राइट है, वो चीज आपके पास है, या फिर किसी और के पास कोई चीज है, थर्ड पर्सन के पास कोई चीज है, किसी में कोई चीज है, तो फ्रेंड्स आप वहां पर यूज करेंगे हैज और हैव। हैज हैव आप कोई चीज रखते हैं, प्रेजेंट में आप कोई चीज रखते हैं, उसके लिए आप यूज करेंगे। रूल फ्रेंड्स इसका वही है, आई यू वी दे के साथ आप यूज करेंगे हैव, ही सी इट और नेम, इसके लिए दोस्तों आप यूज करेंगे हैज। कोई भी चीज आप रखते हैं आई हैव, कोई चीज सामने वाला सेकंड पर्सन रखता है यू हैव। हम कोई चीज रखते हैं, हमारे पास कोई चीज है या फिर हमारे अंदर कोई चीज है तो वी हैव। उनके पास कोई चीज है दे हैव, ही सी उनके पास कोई चीज है ही हैज, सी हैज, इट हैज। किसी में कोई चीज है, जैसे इस मार्कर में इंक है तो फ्रेंड्स इट हैज। इसी तरह से नेम, किसी व्यक्ति के पास कोई चीज है तो नेम लगाकर उसके साथ भी हम हैज यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स ये हैज हैव का दूसरा यूज होता है। लेकिन फ्रेंड्स आई यू वी दे के साथ जब आप हैव यूज करेंगे तो फ्रेंड्स आप बता रहे होंगे कि किसी भी व्यक्ति के पास कोई चीज है। इसी तरह से फ्रेंड्स ही सी इट नेम के बारे में आप बात करेंगे तो कोई भी चीज आप बता रहे होंगे कि उनके पास कोई चीज है। लेकिन फ्रेंड्स अगर हमें किसी से पूछना हो कि आपके पास कोई चीज है तो फ्रेंड्स आप इसके लिए दो वर्ड कॉमन यूज करते हैं, डू और डज। जब हम पूछेंगे कि क्या आपके पास कोई चीज है, जैसे मैं आपसे पूछूं क्या आपके पास स्मार्टफोन है, क्या आपके पास खुले रुपए हैं, क्या आपके पास न्यूज़पेपर है, आपके पास नोटबुक है, आपके पास पेन है, आपके पास बाइक है, क्या आपके पास कार है, क्या आपके पास फ्लैट है। इस तरह के सेंटेंसेस जब आप पूछेंगे थर्ड पर्सन के बारे में, क्या उसके पास पैसे हैं, क्या उसके पास जॉब है, क्या उसके पास एक्सपीरियंस है। अक्सर जॉब में पूछा जाता है क्या आपके पास एक्सपीरियंस है, क्या आपके पास एक पर्टिकुलर फील्ड का नॉलेज है। इस तरह के सेंटेंसेस जब आप पूछेंगे प्रेजेंट में तो भी आप यूज करेंगे डू और डज। जैसे हम एग्जांपल्स के जरिए देखते हैं, डू यू हैव कि आपके पास कोई चीज है, मेरे पास कोई चीज है आई हैव, मेरे पास कोई चीज नहीं है आई डोंट हैव। जैसे क्या आपके पास एक्सपीरियंस है, डू यू हैव एक्सपीरियंस, मेरे पास एक्सपीरियंस है आई हैव एक्सपीरियंस, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है आई डोंट हैव एक्सपीरियंस। इसी तरह से फ्रेंड्स आप यूज करेंगे थर्ड पर्सन के लिए, डज ही हैव एक्सपीरियंस, क्या उसके पास एक्सपीरियंस है, हां उसके पास है, ही हैज एक्सपीरियंस, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, ही डज नॉट हैव एक्सपीरियंस। डज नॉट को आप शॉर्ट में डजंट बोल सकते हैं, ही डजंट हैव एक्सपीरियंस। क्या आपके पास स्मार्टफोन है, डू यू हैव स्मार्टफोन, मेरे पास है आई हैव स्मार्टफोन। क्या उनके पास कोई चीज है, डू दे हैव। डू से आप क्वेश्चन कर सकते हैं आई यू वी और दे के साथ। डज से आप क्वेश्चन कर सकते हैं ही सी इट और नेम के साथ। डज ही हैव तो डज सी हैव, डज इट कोई भी चीज, डज नेम डज मोहन हैव। इस तरह से सेंटेंसेस आप करते हैं। अगर आप बात करेंगे नेगेटिव तो आप डू नॉट हैव यूज करेंगे। कोई भी चीज आपके पास नहीं है डू नॉट हैव, उसके पास कोई चीज नहीं है आप यूज करेंगे डज नॉट हैव, डजंट हैव, डोंट हैव। मेरे पास टाइम नहीं है आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास मोबाइल नहीं है आई डोंट हैव मोबाइल, मेरे पास लाइसेंस नहीं है आई डोंट हैव लाइसेंस, मेरे पास पेन नहीं है आई डोंट हैव पेन, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है ही डजंट हैव एक्सपीरियंस, उसके पास जॉब नहीं है
ही डजंट हैव या फिर सी डजंट हैव जॉब। इस तरह से फ्रेंड्स हैज हैव को हम यूज करते हैं कि कोई भी चीज आपके पास है। जैसे फ्रेंड्स कुछ सेंटेंसेस के जरिए, कुछ वर्ड्स के जरिए देखते हैं कि आप हैज हैव को और किस तरह से यूज कर सकते हैं। स्पेयर टाइम, खाली समय, हमें किसी को पूछना होता है, कोई व्यक्ति बिजी है, उसे हमें पूछें कि आपके पास खाली समय है, आप यूज करेंगे डू यू हैव स्पेयर टाइम। डू यू हैव स्पेयर टाइम, मेरे पास खाली समय है, आई हैव स्पेयर टाइम। मेरे पास खाली समय नहीं है, आई डोंट हैव स्पेयर टाइम। क्या उसके पास खाली समय है, थर्ड पर्सन के लिए पूछ रहे हैं, डज ही हैव स्पेयर टाइम। अगर उसके पास है तो ही हैज स्पेयर टाइम, उसके पास खाली समय नहीं है, ही डजंट हैव स्पेयर टाइम। इसी तरह से फ्रेंड चेंज, चेंज हम यूज कर रहे हैं यहां पर पैसों के लिए, चेंज खुले, क्या आपके पास 100 रुपए खुले हैं, डू यू हैव 100 चेंज, आप यहां पे लगा देंगे 100 चेंज। क्या आपके पास 50 रुपए खुले हैं, डू यू हैव 50 रुपीज चेंज, है तो बोलेंगे आई हैव 100 रुपीज चेंज, आई हैव 50 रुपीज चेंज, नहीं है तो आप बोलेंगे आई डोंट हैव चेंज। क्रिस्पी नोट, बिल्कुल नया नोट, क्या आपके पास नया नोट है, डू यू हैव क्रिस्पी नोट, यस है मेरे पास, आई हैव क्रिस्पी नोट। मेरे पास नहीं है, आई डोंट हैव क्रिस्पी नोट। स्पीकिंग टर्म्स, बोलचाल, क्या आपकी उससे बोलचाल है, डू यू हैव स्पीकिंग टर्म्स विद हिम। मेरी उससे बोलचाल है, आई हैव स्पीकिंग टर्म्स विद हिम। मेरी उससे बोलचाल नहीं है, आई डोंट हैव स्पीकिंग टर्म्स विद हिम। इस तरह से फ्रेंड्स यूज करते हैं आप। एक्सपीरियंस, क्या आपके पास एक्सपीरियंस है, डू यू हैव एक्सपीरियंस। मेरे पास एक्सपीरियंस है, आई हैव एक्सपीरियंस। मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, आई डोंट हैव एक्सपीरियंस। उसके पास एक्सपीरियंस है, ही हैज एक्सपीरियंस। क्या आपके पास मास्क है, डू यू हैव मास्क। मेरे पास मास्क है, आई हैव मास्क। मेरे पास मास्क नहीं है, आई डोंट हैव मास्क। हैंकी, रूमाल, क्या आपके पास हैंकी है, डू यू हैव हैंकी। यस मेरे पास हैंकी है, आई हैव हैंकी। मेरे पास हैंकी नहीं है, आई डोंट हैव हैंकी। इसी तरह से फ्रेंड्स नेक्स्ट है अक्विंटेंस। अक्विंटेंस का मतलब होता है जानकारी। क्या आपकी कोई जानकारी है बैंक में, क्या आपकी पार्लियामेंट में कोई जानकारी है, क्या आपकी स्कूल में कोई जानकारी है, क्या आपकी कॉलेज में कोई जानकारी है, तो डू यू हैव अक्वेंटेंस इन कॉलेज, डू यू हैव अक्वेंटेंस इन स्कूल। लॉन्ग हेयर, क्या आपके लंबे बाल हैं, डू यू हैव लॉन्ग हेयर। करली हेयर, क्या आपके करली बाल है। ब्रेड, चोटी, क्या आपके चोटी है। सी हैज, उसके है, सी हैज ब्रेड। प्लट, प्लट, प्लेट नहीं बोलेंगे इसको, प्लाट बोलेंगे, प्लाट। डू यू हैव प्लट, चोटी होती है। रिंकल, डिंपल। तो फ्रेंड्स इस तरह के वर्ड्स आप हैज और हैव के साथ प्रेजेंट में कोई भी चीज आपके पास है, आपके पास है, किसी भी चीज पे आपका पूरा राइट है, उसके लिए प्रेजेंट में आप यूज करते हैं हैज और हैव। देखिए फ्रेंड्स आपने सीखा था हैज हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, जिसमें आप हैज और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐड करते हैं फ्रेंड्स। लेकिन यहां पे आप थर्ड फॉर्म ऐड नहीं करेंगे फ्रेंड्स, यहां पर आप यूज करेंगे हैज और हैव के बाद नाउन यूज करेंगे। यहां पर फर्स्ट यूज में आपने सीखा हैज और हैव, जिसमें आपने प्लस यूज किया वर्ब थर्ड फॉर्म। सेकेंड यूज की बात कर रहे हैं, सेकेंड यूज में आप हैज और हैव के साथ यूज करेंगे प्लस कोई भी नाउन, कोई भी नाउन। ये फ्रेंड्स यूज करते हैं जब कोई काम खत्म हुआ है, और ये फ्रेंड्स यूज करते हैं प्रेजेंट में कोई भी चीज आपके पास है। सेंटेंसेस हमने देखे, इस तरह से आप भी बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स सीखने के बाद चीजों को बोलना जरूरी है। जब तक उसकी आप बोलकर प्रैक्टिस नहीं करेंगे फ्रेंड्स, तब तक द थिंग्स आर यूजलेस वट एवर वी टेल यू। हम आपको कितना भी बताएं, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, तब तक बोलना नहीं सीख पाएंगे। देखिए फ्रेंड्स स्पीकिंग एक हैबिट होती है कि आप लैंग्वेज को जब बोलना स्टार्ट करेंगे, जब आप बोलने की हैबिट डालेंगे, व्हेन यू विल मेक द हैबिट ऑफ स्पीकिंग, तो हैबिट विल चेंज योर लाइफ। इट इज डिफिकल्ट टू बिल्ड हैबिट।
किसी भी चीज की आदत डालना बहुत मुश्किल होता है फ्रेंड्स, बट दिस इज फैक्ट दैट हैबिट विल चेंज योर लाइफ वन डे इफ यू बिल्ड हैबिट। अगर आप आदत डाल लेते हैं तो आदत आपकी लाइफ चेंज कर देती है। तो फ्रेंड्स उसके बाद हम बात करते हैं तीसरा यूज एक और भी है फ्रेंड्स, हैव का, जो हम यूज करते हैं किसी भी चीज को खाने और पीने के लिए। खाने और पीने के लिए भी आप हैव का यूज कर सकते हैं और करते भी हैं। प्रोफेशनल इंग्लिश में इस वर्ड को फॉर्मल इंग्लिश बनाने के लिए खाने और पीने के लिए ईट और टेक न यूज करके हैव यूज करते हैं। जैसे फ्रेंड्स पानी लो, हैव वाटर, हैव वाटर, पानी ले लो, हैव वाटर, आप यूज कर सकते हैं हैव वाटर। फ्रेंड्स आराम कर लो, हैव रेस्ट। चाय ले लो, हैव टी। बैठो, हैव सीट। बात करो, हैव टॉक। फ्रेंड्स इस सिचुएशंस में भी आप हैव यूज करते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स आप कोई भी चीज खाने और पीने के लिए भी आप हैव यूज करते हैं। जैसे फ्रेंड्स मैं चाय पीता हूं, आई टेक टी। ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस है फ्रेंड, डूडज में यूज करते हैं। इस टेक को हमने रिप्लेस कर देते हैं, हम कई बार यूज करते हैं आई हैव टी, मैं चाय पीता हूं। मैं ब्रेकफास्ट करता हूं, आई हैव ब्रेकफास्ट, आई हैव ब्रेकफास्ट। मैं लंच करता हूं, आई हैव लंच। मैं आराम करता हूं, आई हैव रेस्ट। इस तरह की सिचुएशंस में भी आप यूज करते हैं हैव खाने पीने के लिए भी। तो फ्रेंड जैसे कि मैंने लंच कर लिया, आप यूज कर सकते हैं आई हैव हैड लंच। ट्राई टू अंडरस्टैंड ओवर हियर, ये हैव है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। यहां पर हैड जो यूज किया है ये हैव है, जिसकी 3 फॉर्म होती हैं, हैव, हैड, हैड, जो कि वर्ड यूज होता है खाने और पीने के लिए। आई हैव हैड लंच, मैंने लंच कर लिया। ही हैज हैड वाटर, उसने पानी पी लिया, मतलब काम खत्म हो गया। तो दोस्तों आप भी ध्यान रखिए फ्रेंड्स, जब आप खाने पीने की बात करें तो आप भी यूज करेंगे क्या, हैव, जस्ट टू मेक योर इंग्लिश मोर फॉर्मल। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपने सीखे हैज हैव के 3 यूजेस। नेक्स्ट वीडियो में आप कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।